हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग ग्रेट एट योर प्लेसेस। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है आर नेबरहुड, यानी कि आज हम देखेंगे कि हमारी सराउंडिंग्स में हमारे नेबर्स कौन कौन है। यानी कि हम बात कर ले एटीएम की, हम बात कर ले बैंक की। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हमारे एक्सपर्ट के साथ। Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we all are going to see the starting of your theme number 3. Okay. And the name of your theme number 3 is Celebrating Life. Okay. And the first chapter under this theme number 3, we are going to see your chapter number 7. And the name of this chapter number 7 is Festive Times. In this chapter, my dear student, we all are going to see about our festivals. Okay? So come with me, let's start the chapter. So I wonder, why do people wear new clothes and eat special food during festivals? So my dear student, here, this child is wondering, then why on every festive occasion we used to wear new clothes and we also eat so many new dishes and sweets specifically. And so for giving the answer of this question, you are going to get a hint, because it is the time to spend time with friends and relatives and enjoy. ये कौन सा टाइम होता है? ये वो टाइम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो. ठीक है, तो चलिए अब अपना माइंड को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और देखिए. इशिता एंड ईशान वर एक्साइटेड फॉर दिवाली. दे डेकोरेटेड देयर हाउस विद लाइट्स एंड मेड स्वीट्स विद देयर पेरेंट्स. इशिता और ईशान नाम के दो बच्चे हैं. ये दोनों दिवाली के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं. इन लोगों ने दिवाली पे अपने घर को लाइट से सजाया है और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर मिठाइयां बनाई है. इन द इवनिंग दे लिट दियास. शाम के वक्त इन लोगों ने दिया को जलाया अपने घर में. Their grandmother shared stories about Diwali. Ishita and Ishan visited their neighbors to share sweets and happiness. And in the evening time, my dear students, what happened? Both Ishita's and Ishan's grandmother shared the story behind Diwali, why we used to celebrate Diwali. Okay, and in the evening time, Ishita and Ishan both visited their neighborhood area. Okay, because they wanted to distribute sweets among their neighbors. दे फेल्ट जॉयफुल सेलिब्रेटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. और उन लोगों को ऐसा करके बहुत अच्छा लगा अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चंस. What is your favorite festival and how do you celebrate? Now you tell me, my dear students, which is your favorite festival, okay, and in what way you are going to celebrate it. Then second, have you ever helped your family prepare for a festival? What did you enjoy the most? अब आप सेकंड में ये बताइए कि आपने कभी भी अपनी फैमिली को हेल्प किया है फेस्टिवल मनाने में, मींस तैयारियों में. ठीक है, आपको कैसा फील हुआ? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे. ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी. Festivals bring us together. Why we celebrate festivals? Because, my dear students, while celebrating festival, we sense the feeling of closeness, togetherness. Okay, because festivals bring all community together. Have you ever wondered why we celebrate so many different festivals? It is because festivals bring us together with our friends and family. कभी आपने सोचा है हम लोग फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? क्योंकि फेस्टिवल हम सारे लोगों को, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिलीज के क्लोज लेके आता है. ठीक है, वी गेट टू शेयर टेस्टी फूड, वियर न्यू क्लोथ्स एंड हैव सो मच फन टुगेदर. और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जब हम लोग बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, साथ ही नए कपड़े पहनते हैं और बहुत सारा मस्ती और धमाल करते हैं एक साथ मिलकर. ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द amazing festivals we celebrate in our country. My dear students, now we are going to explore the various or you can say the numerous number of festivals which we enjoy in our country India throughout the entire year. So the first festival which we celebrate in our country India is Holi, and Holi is called as the festival of colors. Okay, Holi is the festival where we play with colorful powder and water. Why Holi is called as the festival of colors? Because, my dear student, on the occasion of Holi festival, we all people of India used to play with colorful powders and waters. We laugh, dance and sing with our friends. It is so much fun.
होली के टाइम हम लोग खूब सारा मस्ती करते हैं, खूब हंसते हैं, खूब डांस करते हैं, गाना भी गाते हैं, ठीक है। और एक साथ मिलके हम सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। वी ऑल्सो एंजॉय टेस्टी गुजियाज एंड अदर डिलीशियस ट्रीट्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और होली में क्या बनता है, कौन सा स्पेशल डिश बनता है, गुजिया बनता है, ठीक है। गुजिया के साथ और भी डिलीशियस स्वीट्स हम सबके घरों में बनता है, हम लोग खाते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल व्हिच वी सेलिब्रेट इज, but before it we are going to see do it time. Let's see here what you are going to do. It is a special day to celebrate with our friends and family after a month of fasting. ये एक स्पेशल डे होता है जिसको आप लोग मीन्स हमारे इंडिया के लोग एक महीने की फास्टिंग के बाद सेलिब्रेट करते हैं। We wear new clothes, go to the mosque to prayer and then share a delicious meal together. We exchange gifts and eat yummy sweets like सेवई। यहाँ इस फेस्टिवल में भी हम सारे लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मॉस्क में जाते हैं, प्रे करते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत ही स्वीट डिश है सेवई, वो खाते हैं। इस फेस्टिवल का नाम क्या है आप बताओगे? इस फेस्टिवल का नाम है ईद उल फितर। आप यहाँ पर लिखोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईद भी कहते हैं, ठीक है। Now let's see the next festival which we Indian used to celebrate, okay? That festival name is Christmas. Actually, this festival is based on birthday. Christmas. Let's see Christmas. What's so special about Christmas? Christmas is a special day to celebrate the birth of Jesus Christ, okay? Christmas is very special festival for Christian community people because it is the occasion of birth of Jesus Christ. We decorate Christmas trees, churches and our homes with sparkling lights and stars. क्रिसमस के दिन हम सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं और साथ ही साथ हमारे घरों में जो भी चीजें हैं उन सबको हम लोग लाइटिंग से सजा देते हैं, ठीक है। We bake tasty cakes, eat delicious cookies and share gifts with our loved ones. जैसे होली में गुजिया बनता है, ईद में आप सेवई खाते हो, क्रिसमस में क्या खाते हो, कौन सा ऐसा स्पेशल डिश है, केक, ठीक है। केक बनाते हैं, ठीक है, हम सारे लोग केक बनाते हैं और डिलीशियस कुकीज भी बनाते हैं और खाते हैं। नाउ रियल वर्ल्ड टाइज, लेट्स सी, चेक योर स्कूल डायरी कैलेंडर टू फाइंड आउट द डेट व्हेन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। आप अपने स्कूल डायरी के कैलेंडर में चेक कीजिए और ये बताइए मुझे क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है। Christmas is celebrated not only in India but in entire world on every year 25th of December. So here you are going to write 25th of December. After Christmas, now we are going to see the another festival and the name of this festival is Guru Purab. Okay, Guru Purab, a day to remember and celebrate. So what is the meaning of Guru Purab? Let's see. Guru Purab, or you can say Guru Parv, is a special day to remember and celebrate the birth anniversary of the first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji. Guru Purab हम तब मनाते हैं जब, मतलब गुरु पूरब इसलिए मनाया जाता है और ये बहुत ही स्पेशल डे है। इस दिन हमारे पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे, ठीक है, ये उनका बर्थ एनिवर्सरी है। Now we pray in gurudwaras, listen to special stories and enjoy a delicious meal called langar. ठीक है, तो गुरुद्वारा में हम लोग जाते हैं, प्रे करते हैं और वहां पे गुरुवाणी सुनते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे एक डिलीशियस मील बनता है लंगर के फॉर्म में, उसको हम सारे लोग एंजॉय करते हैं। वी वेयर न्यू क्लोथ्स, शेयर फूड विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैव सो मच फन। और गुरु पूरब में भी हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अपने अपने फूड को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल, लेट्स सी, has your family ever donated anything during a festival or another special occasion to help needy people? Write about the things you would like to donate to people who are poor. अब आप मुझे ये बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपकी फैमिली ने कभी भी फेस्टिवल के टाइम पे या कभी सर्दियों में, ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग हियर विंटर्स, क्योंकि विंटर्स ऐसा टाइम होता है जब पुअर लोगों को बहुत हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली ने कभी डोनेशन दिया है इस टाइम पे, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताइए कि दिया है, और अगर दिया है तो क्या क्या चीजें दिया है, और कभी अगर आपको मौका मिलता है डोनेट करने का तो आप क्या चीजें करोगे, ठीक है। चलिए, नाउ नॉलेज कैप्सूल, लेट्स सी व्हाट न्यू नॉलेज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व from here. We do not just celebrate religious festival, we also have national festivals like Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. My dear students, we live in country India, okay? So यहाँ पे हम सब religious festival celebrate नहीं करते हैं, हम national festivals भी celebrate करते हैं। Religious festivals किसी एक community के लोग celebrate करते हैं, लेकिन national festival सारे इंडिया के लोग celebrate करते हैं, ठीक है। जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे है,
रिपब्लिक डे है और गांधी जयंती है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब जब फसल उगता है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पोंगल का, ठीक है। पोंगल आ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ठीक है। तो पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, चलो देखते हैं। इन तमिलनाडु पीपल सेलिब्रेट पोंगल टू थैंक द सन गॉड फॉर अ गुड हार्वेस्ट एंड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू काउस फॉर हेल्पिंग विद फार्मिंग ड्यूरिंग मुट्टू पोंगल। मुट्टू पोंगल, देखो तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं पोंगल फेस्टिवल को। पोंगल फेस्टिवल में वो लोग सूर्य भगवान को यानी लॉर्ड सूर्य को थैंक्स देते हैं कि आपकी वजह से हम लोगों को इतनी अच्छी फसल, चावल की खेती स्पेसिफिकली, चावल इतना अच्छा, राइस का कल्टीवेशन प्रोडक्शन इतना बढ़िया हुआ है। साथ ही साथ पोंगल में ये लोग बैलों को भी, मीन्स कैटल्स को भी बहुत स्पेशल थैंक्स देते हैं, क्योंकि इन कैटल्स, अगर कैटल्स नहीं होंगे तो फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ दिस कैटल्स, ओके। सो कहा जाता है मुट्टू पोंगल, ठीक है। पोंगल तो फेस्टिवल है ही है लॉर्ड सूर्य को थैंक्स बोलने का, लेकिन मुट्टू पोंगल में ये लोग कैटल्स को भी थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। We decorate our homes with colorful rangolis, wear new clothes and eat a yummy sweet dish called पोंगल, ठीक है। पोंगल एक डिश का नाम है एक्चुअली। देखिए पोंगल में क्या होता है, हम सब लोग अपने घरों को बहुत ही कलरफुल रंगोली से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक बहुत ही यम्मी स्वीट डिश खाते हैं जिसका नाम पोंगल है। सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, this family is celebrating Pongal festival. Now do it time. See, this harvest festival is celebrated in Kerala, where people decorate their homes with beautiful flowers decoration called पुकालम्स। अच्छा, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आपके केरला स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस दिन लोग अपने घरों को बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर से सजाते हैं जिसको पुकालम्स कहा जाता है, ठीक है। पीपल ईट अ स्पेशल फीस्ट कॉल्ड ओनम साध्य। इस दिन लोग बहुत ही स्पेशल खाना खाते हैं जिसको ओनम साध्य कहा जाता है। They welcome the spirit of King Mahabali for happiness and prosperity and share gifts with their loved ones. और इस दिन ये लोग किंग महाबली, जो एक डीमन किंग थे, यस, हमारे इंडिया में एक ही डीमन किंग है जिनको हम लोग पूछते हैं, वो है किंग महाबली। तो ये केरला के लोग इसको पूछते हैं, ठीक है। केरला के लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब आप ये बताइए ये कौन सा फेस्टिवल है, ये है आपका ओनम फेस्टिवल। देखिए यहाँ पे इसका स्पेलिंग भी लिखा है ONAM, ओनम फेस्टिवल। ये केरला के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है। नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी व्हाट अबाउट आवर नॉलेज ऑफ इंडिया। The most widely celebrated harvest festival is Makar Sankranti, which is celebrated all over India on the 14th of January. पोंगल सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु के लोग, ओनम सेलिब्रेट करते हैं आपके केरला के लोग, बिहू सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है असम के लोग, ठीक है। लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है हमारे पंजाब के लोग। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑल ओवर इंडिया के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं 14th ऑफ जनवरी। आप लोग भी करते होगे ना, बड़ा वेट करते हो मकर संक्रांति का, खिचड़ी खाया जाता है इस दिन और पतंग उड़ाया जाता है, ठीक है। यही है आपका मकर संक्रांति। पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्लाई कलरफुल kites often in the shape of birds, animals or other creative designs. Colorful kites आप लोग उड़ाते हो। It celebrates the harvest of new crops and people express gratitude to the sun god for a good harvest. तमिलनाडु के लोगों की तरह ही मकर संक्रांति में भी सारे लोग, हम इंडियंस क्या करते हैं, सन गॉड को थैंक्स बोलते हैं कि इनकी वजह से इतनी बढ़िया फसल हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग इस मकर संक्रांति फेस्टिवल को ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, so this is all about this chapter. Now come with me, let's see the new word meanings which we have seen in this chapter. होली, होली का क्या मतलब है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। गुरु पूरब, a festival to remember the birth anniversary of the first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji, ठीक है। लंगर, a free meal served in गुरुद्वारा। लंगर क्या है, ये फ्री मील है जो गुरुद्वारा में दिया जाता है। पोंगल, a harvest festival in तमिलनाडु। पोंगल क्या है, एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं। रंगोली, कलरफुल पैटर्न्स मेड ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। रंगोली क्या है, रंगोली आप किसी भी शेप का बना सकते हो, किसी भी साइज का बना सकते हो, कलर्स का यूज करके ग्राउंड में, ठीक है। Now my dear students, come with me, let's see the quick recap of this chapter. Festivals bring people together to celebrate with family and friends. फेस्टिवल क्या है, फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज के बहुत ही क्लोज आते हैं।
होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर वेयर पीपल प्ले विद कलर्ड पाउडर। होली क्या है? होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, जहां पे कलर्ड पाउडर से लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट विद केक्स एंड गिफ्ट्स। ठीक है, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, ठीक है, जब जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं केक खा के। पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु टू थैंक द सन गॉड। पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड सूर्य को थैंक्स बोलने के लिए। मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल वेयर पीपल फ्लाई कलरफुल काइट्स इन द स्काई। मकर संक्रांति 14 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइम हम लोग कलरफुल काइट्स उड़ाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो बच्चों, आई होप सो आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपको ये भी पता चला होगा कि जो हमारे नेबर्स में यानी कि हमारी सराउंडिंग में इतनी सारी चीजें हैं वो हमारे लिए कैसे कैसे हेल्पफुल है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को अब यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।